itself of GGSIP University consecutively from past 5 years. The institute GIFT has also been rated number 2 by Times B School Survey 2021. The institute conducts postgraduate courses, MBAs first and second shift, MBA International Business and undergraduate courses of BBA first and second shift, BBA LLB and BA LLB. In order for students to successfully navigate the obstacles of competitive work life, GIFT places a strong emphasis on the whole personality development of its students. Along with providing a high-quality education, emphasis is placed on helping students develop their leadership skills, risk-taking prowess, decision-making abilities from the very first stage of their professional education. This schedule serves as the guide for the frequently the institute hosts the eminent lecture series. This SLS on social entrepreneurship is a sequel to the aforementioned objective. Objective of this SLS is to make students examine the challenges and rewards of entrepreneurship in creating and growing organizations which prioritize social impact creation, explore some of the knowledge, skills and perspective necessary for responding creatively to the challenges of being a social entrepreneur. Encourage you in lifelong journey of exploring your personal purpose and strength, understanding how you can impact the world, helping you gain the self-confidence to take action. In order to fulfill... Good afternoon. First and foremost, extremely sorry for being late. I'm really sorry. Why it is called transformation of management education? जरूरत क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की? मैनेजमेंट एजुकेशन आपको सिखा रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्या है? How many of you have heard about SDGs? Sustainable Development Goals. किस-किसने सुना है? 1, yeah, 2, 3, 4. That's it. Rest of you have not heard about Sustainable Development Goals. Okay. Now, we all live in Delhi here. We have a river in Delhi. What is it? Yamuna. Yamuna. Do we actually have the privilege of enjoying a river in our city? क्यों? क्या ये आपकी गलती है कि वो रिवर ना होके एक ड्रेनेज, एक गंदा नाला बन गई है? Is that your mistake? आप लोग तो अभी 10, 20, 30 साल, 20, 25 साल पहले पैदा हुए. You must be in your late teenage or early 20s. 19, late teenage वही होता है, ठीक है ना? तो आप लोगों की तो मिस्टेक नहीं है. आपने तो अपने 19, 20, 22 साल की उम्र में ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि सारे अपनी हिंदुस्तान की सब नदियां गंदी हो गई. नहीं किया ना? Now comes the question. Have you ever faced any kind of social problem in your life? I'm asking this question to all of you. Have you ever faced any kind of social problem in your life? Being a girl, I know most of the girls would have faced multiple social issues. कुछ कम क्वांटिटी, कुछ ज्यादा क्वांटिटी. बहुत ज्यादा अच्छा घर होता है, ओपन माइंडेड फैमिली होती है, वहां पर भी every parent is cautious about girl security. They are worried about it. There are issues of teasing. ठीक है, आपको बराबर पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, आपको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ जेंडर घर पे वैसे नहीं किया जा रहा कि आपको ये खाना नहीं मिलेगा, वो खाना मिलेगा, which happens with half the population in the world. Clear? Now the question is why we have to think about, or for that matter, the students of BBA and MBA, whatever is being taught to them, that needs to be transformed. मैं MBA, PhD, FMS से, हमारे वहाँ पर हमें सिखाया गया था कि सक्सेस का एक ही पैरामीटर है, आपका पे पैकेज. After 5 years, how successful you are, that would
where you stand. When I say where you stand, then what is the answer to where I stand? गाड़ी कौन सी है, डेजिग्नेशन क्या है, पे चेक कितना है, यही सिखाया गया और वो हमने बहुत अच्छे से इम्बाइब किया और हम उस चीज को बहुत सीरियस लेके उस पर काम करते रहे. आप लोग भी यही करेंगे. All of you sitting here today, you are on the same platform right now. मार्क्स कम नीचे ऊपर ज्यादा हो रहे हैं, बट सब सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में एक साथ पहुंच रहे हैं. थोड़ा बहुत किसी के रीअपियर शेपियर होगा, वो सब भी मैनेज हो गया, बट विद इन 3-4 years all of you would complete your BBA. ऐसा कोई marginal difference नहीं है ना. But after 5 years, when you would meet each other, when you talk to each other, you would try to find out where are the other persons are. Then you would see कितना गैप आया है सबके बीच में. Then you would see you have moved to different trajectories. बेशक आप सब एक ही क्लास में बैठकर एक ही जैसी एजुकेशन का एक्सपोजर लेकर जा रहे हैं, बट आपको उस एक्सपोजर में एक चीज जो बहुत कम है, जो हम यहाँ पर आपको नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि जो हमने किया है वो बहुत अच्छा नहीं है. What is social entrepreneurship? ये डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इसके लिए सिर्फ एक चीज सोचने की आपको जरूरत है, क्या हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है? Yes or no? Yes. Is there gender-based violence in the society? Yes. Is there poverty in the society? Yes. Does everyone get a chance to the same kind of quality education? No. Do we have very good workplaces which give equal value to all talented people? No. Do we have pure water? No. Do we have fresh air? No. Is there a problem of pollution? Yes. यही सब कुछ हमने क्या कहा, ग्लोरीफाई करके 192 countries put together their brains to identify these problems, and they came together with what we call Agenda 2030 or Sustainable Development Goal. क्या ये Sustainable Development Goal identify करने के लिए 192 countries के सुपर ब्रेन्स को इकट्ठे बैठकर आइडेंटिफाई करके तब उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत थी? आप तो बहुत छोटे हैं, जितनी लिमिटेड लाइफ आपने देखी है, कैन यू आइडेंटिफाई सो मेनी प्रॉब्लम्स? When you come out of your house, or you must be having helps in your house, उनके बच्चों के और आपके बीच में फर्क दिखता है? Have you ever felt any kind of pain or helplessness in a situation where you felt कुछ तो होना चाहिए इनके लिए भी? That is where social entrepreneurship comes into picture. Now the question is, NGOs तो हैं, इतनी सारी NGO काम कर रही है, वो भी तो यही सब काम कर रही है. Why social entrepreneurship? What is the difference between any normal entrepreneurial venture and social entrepreneurship? That should be the question that you need to understand first. When any person who has very good business skills or management skills starts a business with a compassion, finding a solution for a social problem, then he or she becomes a social entrepreneur. He or she becomes a social entrepreneur. Microfinance word सुना है सबने? क्या होता है microfinance? मोहम्मद यूसुफ का नाम सुना है? सबने सुना होगा ना? अच्छा, आप में से कभी किसी ने, आप लोग तो सब अब तो स्कूलिंग खत्म कर चुके हैं, वॉलंटियर किया है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहां जाकर आपने फ्री में पढ़ाया हो किसी बच्चे को? कितने सारे ऐसे आपके आसपास वेंचर्स हैं जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? एक आपने वो अभी स्टोरी देखी थी जो कोविड टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि किसी फ्लाईओवर के नीचे किसी दुकानदार ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है वो ये कि जिनके पास प्रिविलेजेस हैं, जिनके पास पैसा है, उनमें कंपैशन नहीं है.
जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रिविलेजेस है, जिनके पास इतने पैसे थे कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में फीस पे करके बीबीए कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कंपैशन आपने नहीं दिया तो वो कैसे ग्रो होते हैं? दे ग्रो विद व्हाट वी कॉल अ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और ये फर्क सिर्फ आप में और दूसरे लोगों में नहीं है, ये फर्क कंट्रीज टू कंट्रीज भी है, बिकॉज इनइक्वालिटी लाइज इवन विद इन कंट्रीज। सो इफ यू गो टू एनी डेवलप्ड कंट्री, दे विल हैव लॉट ऑफ मनी। लोग हमसे बहुत कम है उनके पास, हम तो नंबर 1 है पॉपुलेशन में, but we have very limited resources. But when it comes to these countries, they try to solve our problems, but उनको वो problem का पता ही नहीं है. It is their understanding of the problem for which they are providing a solution. And then they say, we have money, we'll give you money, but you have to do it this way. And that's the reason why, even with so much of funds and even with United Nations working so hard to solve inequality as a problem in the world, it is still increasing every day. How many times you have heard stories about some poor, a kid belonging to some poor family doing miracles? किसी ने IAS पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, कोई इंजीनियरिंग में निकल गया, और सुपर 30 सबने नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे वेंचर्स हैं। सुपर 30 इज व्हाट? इट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। इसी तरीके से SCFI करके एक स्कूल खोला गया है, जिस स्कूल में अंडर प्रिविलेज गर्ल्स एंड बॉयज उनको पढ़ाया जाता है, तो उनसे कोई फीस आप नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं फीस। आप में से कितने बच्चे एलिजिबल हैं कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए? उसकी क्या कंडीशंस होती है कॉल सेंटर में? 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको आता है इंग्लिश बोलना और 12th पास है? 100%? All of you? How many of you are doing any kind of internship or working? नहीं कर रहे ना? क्यों? क्योंकि जरूरत क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कॉल सेंटर में जाके नौकरी कीजिए। Your parents would be really annoyed because they are spending so much of money on you. तुमको यही करना था तो फिर हमसे पैसा क्यों बर्बाद करवा रहे हो? आप किसी दुकान पे जाके इंटर्नशिप करते हैं, कहीं पे कोई सोशल वर्क कर रहे हैं? नहीं करते। क्यों? Because it's not part of our social structure as of now. True? So what is it that is missing in any good society? आप सब लोगों ने Maslow's hierarchy of needs पढ़ा होगा। Okay, let's go back to the classroom. कहाँ से शुरू होता है? No. Physical needs. It starts with the physical needs. सबसे पहले क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। जब खुद का पेट भरा होगा तभी तो हम बात करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं इस वर्कशॉप में बैठने के लिए आप लोगों को एक सैंडविच देती तो आप लोग बहुत मोटिवेटेड होते? नो चांस, नो चांस। लेकिन आप लोगों ने मिड डे मील स्कीम सुनी है? Why is that mid day meal such an important scheme? क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो उस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं जहां पर मील इज स्टिल एन इशू। मील इज स्टिल एन इशू। तो जिनके घर में मोटिवेशन ये है कि वहां खाना मिलेगा इसलिए स्कूल जाओ, पढ़ेंगे लिखेंगे वो सब तो बाद में होगा। तो इसीलिए क्या बताया गया बचपन में, सब हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या कहते थे? खाली पेट भजन नहीं होता। उसी तरीके से without your basic needs being fulfilled, you cannot educate people. आप किसी गरीब आदमी को किताबें दान कर दीजिए, उसे बोलिए have we developed or improved from 1950 or 47 when we found independence? 1947 से अभी तक हमारी सिचुएशन में कितना सुधार आया है इकोनॉमिकली एंड सोशली? Is the health facility better than 1947? Is education system better than 1947? Are the cities more well developed? This is human hypocrisy. एक तरफ हम पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया,
हमने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, बट हैव वी लॉस्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन अ लॉट ऑन क्वांटिटी, कोई दो राय नहीं है इसमें। स्कूल्स जितने पहले थे या एनरोलमेंट जितना पहले था उसके कंपैरिजन में आज एनरोलमेंट बहुत इम्प्रूव्ड है। एजुकेशन सिस्टम के लिए जितने रास्ते आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे, बट इज द क्वालिटी सेम? क्वालिटी सेम है नहीं है? कैसे फर्क पता चलता है कि क्वालिटी सेम है या नहीं है? If you had a chance to interact with your grandparents, then they would tell you कि उस वक्त 5वीं पास 10वीं पास में नौकरी बहुत अच्छी मिलती थी। उस वक्त के जो इंजीनियर्स होते थे, आपने सीवी रमन्ना की स्लाइड देखी है where he is teaching and वो उनकी हैंडराइटिंग इज कंसीडर्ड एज गूगल फॉन्ट साइज फॉन्ट के लिए उनको बेस की तरह यूज किया गया है। When was the last time you actually created something on your own? स्कूल में जो असाइनमेंट्स होते थे, आपके स्कूल कितना क्या होता था? उसमें आपका डांस पीरियड भी होता था, आपका लाइब्रेरी पीरियड भी होता था, आपका गेम्स पीरियड भी होता था, आपका आर्ट्स एंड ड्राइंग का पीरियड भी होता था। डू यू हैव द सेम थिंग इन बीबीए? डू यू हैव द सेम थिंग इन बीबीए? तो क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको? ग्रेजुएशन में आते ही हम ये बता रहे हैं कि डांस, आर्ट, लाइब्रेरी, these are not that important. Where is the holistic well-being? Where is the holistic well-being? India is considered to be one of the most unhappiest nation. और बड़ी उस पे कंट्रोवर्सी होती है और सुधीर चौधरी अपना वो आज तक के लेके खड़े हो जाते हैं कि इनका कैलकुलेशन गलत है, इनका ये गलत है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं and you're the future of this country, future of this world. Just close your eyes for a minute and think about your own happiness index. आप stress level या happiness को अगर 0 is completely stressed and 10 is very happy, where would you give yourself the point? 0.5. हाँ? इसने कहा -10? See, there's nothing to joke about it. Believe me, आप लोग बहुत stressed हैं, and I have all sympathies for you because मैं भी mother हूँ. I've been a teacher for ages. I can relate to so many of the things which you would have done so many things in your school education, and you would be doing here in your management education also. So many things which you would not be able to even relate. ये क्यों करना है? But because it is part of the structure, it's part of the system, your teachers are as helpless as you are. Why? Because we have forgotten that education is supposed to open doors and not close. And that's the reason why I stress so much on transformation, transformation, transformation. अगर आपको एक अच्छे आदमी को define करना है, तो उसमें आपको क्या उसकी डिग्री को पहले 5 पोजीशंस पे रखेंगे? Will you put the degree on the first 5 positions? नहीं रखेंगे, जरूरत ही नहीं है। कितने ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर सक्सेसफुल रहे लोग बिना किसी मैनेजमेंट एजुकेशन की डिग्री के? बहुत सारे मिलेंगे। आज आपको अगर चॉइस दी जाए कि एक आगे पढ़ाई नहीं करनी है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक आपके पेरेंट्स को आएगा, whether you are getting anything out of this or not. But एक सोशल स्टिग्मा, इनके बच्चे ने डिग्री पूरी नहीं करी, मैं एक समाज में क्या मुंह दिखाऊं? आपकी मैट्रिमोनियल वैल्यू घट जाएगी। लेकिन क्या इस डिग्री से आपको जो जिनकी जो घट जाएगा वो कुछ ऐड ऑन कर रहा है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो वो आपके दिमाग का दरवाजा खुलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड दिस वी हैड बीन ट्राइंग टू लाइक रेस फॉर एजेस। अब हमने एनईपी 2020 लागू किया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एनईपी को पढ़ा, उसके डॉक्यूमेंट पढ़ा, मुझे नहीं पता।
लेकिन एनईपी में थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो उसलिए आए हैं क्योंकि हम कहते हैं कि अगर बच्चे को सिर्फ 1 साल वैल्यूएबल लग रहा है तो वो 1 साल पढ़े, आप उसको उस 1 साल के पॉइंट्स दीजिए और उसे जाने दीजिए। 2 साल 3 साल को मार्केट में काम करे और कुछ सीखे, उसके बाद उसे लगे कि इसके आगे मुझे ये सीखना है तो वहां से शुरू कर पाइए। ये जो हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन पिछले 50 साल से कर रखा है, दिस इज साइंस, दिस इज कॉमर्स, दिस इज आर्ट्स, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज रबिश। And that is where the developed nations have changed some 50 years back, and they have opened the education in such a way that you have all the subjects, pick up whatever you want. I am interested in geography and physics. There is always some kind of interlink between the two subjects. At the same time, I also want to do Bharatnatyam. I would be graduating in these 3 subjects. You have that choice. And that is what has been tried. But the problem is, आप ऊपर से change लाना चाह रहे हैं. Have you trained the staff for it? Have you changed the system for it? No. This is called human hypocrisy. वो hypocrisy क्या है? पढ़ो बेटा पढ़ो, किस लिए पढ़ें? उसका जवाब हमारे पास नहीं है. नौकरी करो, किस लिए करें? So till the time you find the right purpose in your life, it is all hypocritic. And because of this human hypocrisy, we have reached a stage जहां सब कुछ collapse हो रहा है. जिस वक्त समर्स होना चाहिए उस वक्त स्नोफॉल हो रही है ऑस्ट्रेलिया में. जिस वक्त यहाँ पर गर्मी आनी शुरू होनी चाहिए थी उस वक्त तक लू से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर लिए. तो एल नीनो हो रहा है, अल्नीना हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन है. हम बिफोर कोविड केम, दिल्ली पीपल वर ऑलरेडी यूज्ड टू मास्क. सितंबर अक्टूबर में हमें मास्क लगाने पड़ते थे, स्कूल बंद करने पड़े हमें पोल्यूशन की वजह से. दिस इज ऑल ह्यूमन हिपोक्रेसी. On one side we are talking about this has to be done, this has to be done, but anything that is done without purpose is useless and would give consequences like this. हमने इंडस्ट्रीज बनाई, बहुत अच्छा था. उसके बाद 1970s में सडनली वी रियलाइज्ड ओह एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, एंड देन वी स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड द नाइस पैकेजिंग, ग्रीन मार्केटिंग. ओके जी, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, हमने स्टिकर लगाने शुरू कर दिया, ग्रीन डॉट लगाना, रेड डॉट लगाना, लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस आ गई कि आपको ये करना है, ये करना है, ये लिखा होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है, करिए. But did that stop harming the environment? Will a label stop harming the environment? Clear? Next came societal marketing. इतना तो मार्केटिंग सबने पढ़ लिया होगा ना. सोसाइटल मार्केटिंग क्या है? हमने कहा कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पैसा लेती है तो उसको सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना चाहिए. तो सोसाइटी को रिटर्न कैसे करोगे? हम एक हेल्थ चेकअप मेला लगा रहे हैं, हम एक स्कूल खोल रहे हैं. उस स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं? तो प्रिविलेज किड्स. हाउ इज दैट रिटर्निंग टू द सोसाइटी? Except for a few industrial houses like the Tatas, who have always been considered to be social entrepreneurial organization, क्योंकि उन्होंने ये माना कि अगर कुछ अच्छा होगा तो वो सबके लिए होना चाहिए, तभी वो enterprise है, otherwise वो greed है. So what is the basic difference between a normal enterprise and a social enterprise is कि सोशल एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी एक आदमी या एक परिवार के लिए पैसा कमाना नहीं है. सो अगर आप किसी ऐसे सोशल प्रॉब्लम को देखते हैं जिसके सॉल्यूशन आपको लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट आई हैव दैट एक्सपर्टीज व्हिच आई कैन प्रोवाइड टू द पीपल, तो फिर मैं एक सोशल एंटरप्राइज बना सकता हूँ. और फिर उस पैसे से जो भी, अब यहाँ फर्क क्या आ जाता है? एनजीओस क्या कहती है? नॉट फॉर प्रॉफिट. दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, दिस इज फॉर प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट इज नॉट वन मैन्स प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट वुड बी ब्रॉट बैक इनटू द बिजनेस एंड इट वुड बी स्केल्ड अप टू चेंज अदर पीपल्स लाइफ. सो जब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव
किसी की जिंदगी बदलना है या कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, देन इट इज कॉल्ड द सोशल एंटरप्राइज। अब उसमें आप अपने लिए एक लिमिटेड प्रॉफिट पे ही रुकते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा जो आपने फुल स्टॉप लगाना है वो कहाँ लगाना है? ग्रीड। इनइक्वालिटी का बड़ा कॉज दुनिया में, द बिगेस्ट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, द बिगेस्ट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज ग्रीड, बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर टू पुट अ फुल स्टॉप। हमें लगता ही नहीं कि कितना पैसा मेरे लिए काफी है, हम चाहते ही नहीं कि कहीं पे हमारा बेंचमार्क क्या है। अगर पापा के पास 4 कमरे का घर है तो मैं अगर ज्यादा कमा रहा हूं तो मेरा कम से कम 5 कमरे का तो होना चाहिए, 6 कमरे का तो होना चाहिए। अब सब लोगों ने, I should not say it, but frankly speaking, you had been lucky enough to witness COVID-19 pandemic. If that did not give you a lesson on compassion, that did not give you a lesson on the frugality of life, सब कुछ जो आप कमाएंगे वो यही रहना है। How much you can bring in to change other people's life, only that would stay for a few days in people's heart. That is what is the need for social entrepreneurship. Have you people witnessed how many people lost life? Have you people witnessed how families were broken? Last rites perform करने के लिए कोई नहीं है। I have people in my friend circle who lost everyone. I know my dear students who lost both their parents, and we had to really put in money to pay for them. अब लोग होंगे तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं होंगी तो फिर समाधान करने के लिए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। इसीलिए इंडिया is considered as the hub for social entrepreneurship. There is a boy called Kaushalinder. I am topper. 2004 batch or 5 batch, I don't remember exactly. बिहार से लड़का, बहुत decent family से, बहुत कोई ज्यादा पैसा नहीं था। IIMS पहुंचने किसी तरह IIMS में उसने पढ़ाई करी, क्लास में टॉप किया। उसके बाद बीच में उसकी इंटर्नशिप कहीं पर चल रही थी, उसके बीच में वो अपने गांव गया है जहां पर सबकी सब्जियां खराब हो गई। वहां वेजिटेबल वेंडर्स जो उसके आसपास थे वो सब्जियां बेचने के लिए गर्मी लू की वजह से वो सब्जियां खराब हो गई। एंड दैट इज द टाइम ही डिसाइडेड कुछ तो कर सकता हूँ यार, इतना पढ़ लिख के IIM तक पहुंच के मेरे पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन नहीं है। एंड देन ही क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड अ AC कार्ड्स, जिसमें वो नीचे आइसिंग बैग और वो करके उसने सोल्यूशन निकाला, और उसमें वो जो सब्जी की रेडियां होती हैं वो उनके लिए बनाई, बट विद अ फ्रीजिंग फैसिलिटी इन दैट। दिस इज व्हाट अ सिंपल प्रॉब्लम। अब वो पहली बार तो सब्जियां खराब नहीं हुई थी, और ना ही कौशलेंद्र पहला लड़का था जो घर से निकला होगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कितने सॉल्यूशंस हमारे आसपास हैं। प्रॉब्लम कहां पर है? We are not aware. हम बड़े प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे रहते हैं, जहां आपके माँ बाप आपको धूप से, गर्मी से, स्ट्रगल से बचाते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो आपकी वीकनेस हो जाती है। आपको आज एक इंटर्नशिप मिलेगी जहां आपको पूरा दिन काम करने के 1000-2000 रुपए मिले, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? इतना पैसा तो मुझसे ले लेना, चुपचाप घर में बैठो, सारा दिन स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। They try to protect you, and there's nothing wrong with it, but please don't get that false sense of entitlement. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेकर पैदा हो गए हैं और आपको ये लगता है कि ये काम मेरे करने का नहीं है, या ये प्रॉब्लम आपके सामने इतने सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, आपके ब्रेन उसको रजिस्टर ही नहीं करते होती प्रॉब्लम की तरह। समझ में आ रहा है? So lack of compassion in youth is the biggest problem. ये है वो 17 गोल्स जो 192 कंट्रीज ने 2015 में अडॉप्ट किए, और इससे 15 साल पहले इन 2000 ये जो गोल्स थे उनका नाम था MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और वो सिर्फ 8 थे। मतलब 8 थे 15 साल के लिए। हमने 15 साल बहुत काम किया उन पे,
उसके बाद हमने एनालाइज किया और हमने देखा कि अभी तो सिचुएशन और खराब हो गई है और हमने ये 8 की बजाय 17 बना दी। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें नहीं पता कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। द प्रॉब्लम हियर, बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज, ये प्रॉब्लम है क्यों? इफ यू डू नॉट गो इनटू द कॉज, देन क्या होगा? ये हमने 2030 एजेंडा रखा है, तो 2030 में हम क्या करेंगे? 30 गोल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि तब तक और सोशल प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अब एक बार लाइन वाइज हम इनको देखते हैं। नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी के आगे जीरो हंगर। अब पॉवर्टी और हंगर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? और सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, कैन यू टेल मी whether poverty is universal or is it psychological? आप किसी गरीब परिवार को अगर अडॉप्ट कर लेते हैं और आप उनको पैसा देना शुरू कर देंगे, भाई तुम काम करो, हम तुम्हें हर महीने इतना पैसा देंगे और तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपको लगता है कि कोई उसके लिए सब यस करेंगे या कुछ लोग नो भी करेंगे? क्यों पॉवर्टी हट नहीं गई दुनिया से? मेरे आसपास अगर 5 गरीब लोग मुझे दिखें और उन 5 लोगों को मैं पैसे दे दूं कि हर महीने चलो मैं आपको 10,000 रुपए दे रही हूं, तो क्या वो 10,000 रुपए से वो गरीबों की गरीबी हट जाएगी? क्यों नहीं हटेगी? वेल्थ ऑफ नेशंस किताब है बाय एडम स्मिथ, जो सबसे पहली किताब हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और कैपिटलिज्म के बारे में बताती है। जब तक हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, फैक्ट्री सिस्टम नहीं आया था, तो हम बहुत सुखी थे। हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थे, हमारे पास हैंडलूम्स होते थे, हथकरघा होता था, काम हम घर पे करते थे। अगर मैं कॉटन उगा रही हूँ तो मैं बहुत सारे कॉटन का एक्स्ट्रा कपड़ा बनाऊंगी, आप वूल उगा रहे हैं, आप मुझे वूल के कपड़े दीजिए और मैं आपको कॉटन के कपड़े दूंगी, आप सिल्क के कपड़े दीजिए, और खाने का भी ऐसे एक्सचेंज होता था, बार्टर होता था और बढ़िया काम चल रहा था। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? मैं जो बना रही हूँ उसकी ओनरशिप मेरे पास है, आप जो बना रहे हैं उसकी ओनरशिप आपके पास है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री सिस्टम ने हमें जो सबसे बड़ा कलंक जो दिया दुनिया का, वो है एलिनिएशन ऑफ ओनरशिप। अब मैं अपना लेबर बेच रही हूँ, नाउ आई बिकम अ लेबर, नाउ माय स्किल्स आर बीइंग सोल्ड। मैंने जो काम किया, जो बनाया, वो मैंने वहीं छोड़ा और मैं वापस गई, उसके बदले मुझे पैसा दिया गया और फिर उसी सामान को यूज करने के लिए मुझे खरीदना पड़ा। उससे क्या हुआ? विद दिस सेंस ऑफ लेबर ओनरशिप चली गई। अब ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में रह गई और उन कुछ लोगों को ये पता था कि अगर मैंने इनको ज्यादा पैसा दे दिया तो लेबर सप्लाई खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा पैसा दिया तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुझे सस्ता लेबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपको प्रिपेयर करती है फॉर बिगर एंड बेटर रोल्स। सो अब सवाल उठा कि वो इतना ही वेजेस आपको देंगे कि आप सस्टेन कर सकें, मतलब एक रेगुलर सप्लाई इतना पैसा जरूर देंगे कि आप कुछ बचाकर शादी कीजिए, अगली जनरेशन बच्चे आएंगे और वो नेक्स्ट साइकिल ऑफ लेबर सप्लाई होगा। बट इतना पैसा हम आपको नहीं देंगे कि आप पढ़ लिख कर उस साइकिल से बाहर करें। इसीलिए पॉवर्टी ट्रैप बोला जाता है। Why it's a multi-dimensional concept। अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे डेवलपमेंट स्टडीज में, it's a multi-dimensional, आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जब हम पॉवर्टी की करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉवर्टी आपको चॉइस नहीं देती। चॉइस ऑफ स्टडिंग, चॉइस ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट। Why your life is different from a poor person is because you have the power of making choices. They do not have the power of making choices. अगर मेरे पास केवल 100 रुपए हैं और आपके पास 1000 रुपए हैं, तो अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो मेरी चॉइसेस लिमिटेड है, आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, then you have to find solutions to break that trap.
यहाँ पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। नो, जीरो हंगर, जीरो हंगर, 5 रुपए में प्लेट भरपेट खाना, ऐसे कितने आपने सक्सेसफुल लोग देखे हैं। नोएडा में एक बहुत ही पॉपुलर आदमी है, वो खाना खिलाते हैं लेबरर्स को 5 रुपए में, ऐसे बहुत सारे लोग। इसी तरीके से गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यू आर सच प्रिविलेज्ड पीपल, आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, आप लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी है, बट इज योर मेंटल वेलबींग प्रोटेक्टेड? Is your holistic well-being protected? So even when we have quality education, good health and well-being is ignored. इसीलिए इस जनरेशन में जिसके पास प्रिविलेज है इंटरनेट का, जिसके पास प्रिविलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके पास और हजारों प्रिविलेजेस हैं, बट इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेंटल वेलबींग। दैट्स अ पेंडेमिक, नेक्स्ट पेंडेमिक। आप सब लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आप सब लोग सोशली कनेक्टेडनेस से डिप्राइव्ड हैं। Then we have quality education, gender equality, clean water and sanitation. We have affordable and clean energy. We have decent work. We have industry, innovation and infrastructure. Reduce inequality between organizations and between countries. Then we have sustainable cities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on sand. आप लोगों ने किसी ने सद्गुरु जी का नाम सुना है? Save soil, that's a social initiative for life on land. And then you have peace, justice and strong institution, and all of these need to do partnership with each other. समझ में आ गया? तो ये है 17 सस्टेनेबल गोल्स। जब आप नीड आइडेंटिफिकेशन करें अपने बिजनेस मॉडल में, you will have to keep these 17 in mind in order to become social entrepreneurs. These are society, economy, environment taken together. These are the qualities. Economics, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? पैसा तो कमाना ही है, लेकिन उस पैसे को डायरेक्ट कहाँ करना है, प्रॉफिट को डायरेक्ट कहाँ करना है, उसके लिए हमें मर्ज करना पड़ता है बिजनेस एंड दिस इज द एजेंडा लीव नो वन बिहाइंड। जब तक सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, तब तक हमारी मेंटल वेलबींग नहीं हो सकती। दैट्स ऑल। For bestowing her exuberant knowledge on this very hot topic, social entrepreneurship. We have been studying about the profit-making organization. Everyone wants to become entrepreneur just to earn profit. But today, I hope we all got a different avenue, a different angle. That what we do, we need to pay back to the society. All the resources we are enhancing from society, and now we need to pay back to the society. So with this topic, I would like for you all to gain this knowledge, imbibe this knowledge in you, because you all are the future of our generation. Thank you, ma'am. Thank you so much for your knowledge. I would request Sir to present the memento to Dr. Rakeshwari Mani.